ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਤੂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਮਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਸੀਗਾ, ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਨ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਵਾਉਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਕਦੀ ਤੁਰ ਪਾਊਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਕਵਿਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਊਂਟਨ ਪ੍ਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ। 9 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਇਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। इमरजेंसी सेक्शन, उस ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ, मसा करो अपनी बॉडी को राइट नाउ। उसने कहा मैं तुझे लहू से धोकर तेरे ऊपर से तेल मलूंगा। लहू के बाद तेल आता है, उस तेल को मलो अपनी बॉडी के ऊपर, अपने सिर के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर उस ऑयल को लगाओ, अपने पेट पर लगाओ, जहां रोग है वहां लगाओ, मसे में बढ़ने के लिए लगाओ, अपने सिरों के ऊपर, अपने माथे के ऊपर। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਆਇਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰੀਨ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗਏ। इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी के जो पीछे बहुत जोर से इनको धक्का लगा था और तभी से ये बेड के ऊपर थे, एक भी कदम चला नहीं जाता। आज इनकी फैमिली, इनका परिवार इनको उठा के गाड़ी में लिटा के चर्च में पहली बार लेके आए। और जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि इमरजेंसी सेक्शन में लोग हील हो रहे हैं, उसी वक्त इनको खड़ा किया गया, चेक करने के लिए बोला। तो चल के देखा तो आज ये बहन चल पा रहे हैं। परमेश्वर ने इनको हील किया। एक बार जोर से सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਰੀਨ ਪਾਈਪ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਹੱਥੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਮੈਂ।
ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसा कि परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। इस बहन का नाम सोनिया है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। 2015 में जब इनकी मैरिज हुई तब ये बहन और इनके हस्बैंड बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल में गए, हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, पर कहीं से कुछ भी आशीष नजर नहीं आ रही थी। और ये बहन अपनी जिंदगी में इतना टूट चुके थे, ये हर वक्त रोते रहते थे, कोई आनंद इनकी जिंदगी में नहीं था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसी कारण आपके जो है बेबी नहीं हो रहा, क्योंकि आपके एग्स जो है नहीं बन रहे। फिर हमने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, कम से कम 9 से 10 जो डॉक्टर थे हमने चेंज किए। और इसी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा निराश रहती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी कि मतलब किसी को बताना नहीं, अपना दुख किसी के सामने नहीं बांटना, कि मतलब मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ। उन्होंने मेरी स्लिप के ऊपर इनफर्टिलिटी लिखा, तो उस टाइम मतलब मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी कि मतलब मेरी स्लिप पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मतलब मैं सच में बांझ हूँ और कभी सच में मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। ये चीज़ मुझे अंदर से इतना मतलब तोड़ के रख दिया। और लास्ट में इनको ये सुनने को मिला कि ये बांझ है। उस समय ये बहन पूरी तरह से टूट चुके थे, पर जब अंकुर नोरा मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो चर्च में आना लगातार शुरू किया और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में से उस बांझपन को खत्म किया और इनको आशीषित किया। तो आइए इस बहन की सुंदर गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया सहोता, मैं पठानकोट से हूँ और आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2015 में मेरी शादी हुई और उसके बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। और जब मैं रात को सोती थी और मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जो दुष्ट आत्मा थी वो मेरे साथ गलत रिलेशन बनाती थी। जब मैं सुबह उठती थी और मैं देखती थी कि मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा नील होते थे और इसके साथ ही मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगी और मेरे पीरियड्स जो थे वो बिल्कुल इरेगुलर हो गए। 1.5 मंथ के बाद मुझे पीरियड्स आते थे, कभी कभी 2 मंथ के बाद मुझे पीरियड्स आने, और इसकी वजह से मेरी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं बहुत ज़्यादा निराश थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही करते मैंने और मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान के लिए 2 साल के बाद सोचा और मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जब हमारे बेबी नहीं हो रहा था और हमने आपस में सलाह की कि हम किसी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ मिले, और मैं उस टाइम जो थी एज अ स्टाफ नर्स थी और मेडिकल फील्ड में थी और मैं गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर को जानती थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम उनके साथ कंसर्न करेंगे। जब हम गायनी डॉक्टर के पास गए और उनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई और उसके बाद उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करने शुरू किए। उन्होंने बोला कि आप ये सारे टेस्ट करवाओ। उन्होंने मेरा थायराइड टेस्ट और प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाया और वो सारे टेस्ट जो थे बिल्कुल नॉर्मल थे। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एक बार जो है एग स्टडी करवाओ। जब मैंने एग स्टडी करवाई और उसका रिजल्ट ये आया कि उसमें जो था दोनों ओवरीज में जो एग बनते हैं वो राइट ओवरी जो थी उसमें बोल रहे थे कि एग बहुत ही कम और बहुत ही छोटे बनते हैं और लेफ्ट में बिल्कुल भी नहीं बनते थे। डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसी कारण आपके जो है बेबी नहीं हो रहा, क्योंकि आपके एग्स जो है नहीं बन रहे, और उसकी वजह से उन्होंने बोला कि आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे और साथ में आपको मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। मेडिसिन खाने के बाद भी और इंजेक्शन लगवाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया और मेरे बेबी कंसीव नहीं हो पाया। और फिर हमने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, कम से कम 9 से 10 जो डॉक्टर थे हमने चेंज किए,
किसी से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। हमारे कई रिश्तेदार ऐसे थे जिनके मतलब कई बार बच्चा होना और उन्होंने कभी हमें बताना नहीं कि प्रेगनेंसी है, जहाँ बेबी कब होगा, जहाँ कब हुआ, और ये सब बातें मुझसे छिपाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि अगर मैंने किसी के पास जाना, किसी घर में जाना बच्चा उठाने के लिए, जब बोलने के लिए, तो उन्होंने मेरे साथ बात नहीं करनी, मेरे साथ मिलना नहीं। और वो सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। और जब मैं अपने हस्बैंड को घर आके बताती थी और हम लोग एक रूम में बैठकर दोनों बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते थे। क्योंकि वो समय ऐसा था कि मेरे पास बेबी नहीं था और हम दोनों बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर बहुत रोते थे। जब हम कभी मार्केट जाते थे और मैं बच्चों के कपड़े देखती थी और उनके टॉयज़ देखती थी और मतलब बहुत ज़्यादा अंदर इमोशनल होती थी कि मतलब हमारे पता नहीं कब बच्चे होंगे और कब हम उन्हें टॉयज़ लेके देंगे और कब उन्हें कपड़े लेके देंगे। मतलब मन में बहुत सारी इच्छाएं थी कि हम अपने बच्चों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमारे पास नहीं थे और हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए रोते थे। और हर टाइम दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि शायद मैं कभी माँ बन ही नहीं पाऊँगी और मेरे कभी बच्चा हो ही नहीं पाएगा। और इसी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा निराश रहती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में रूम को बंद करके और अकेले इतना रोना कि मतलब किसी को बताना नहीं, अपना दुख किसी के सामने नहीं बांटना, कि मतलब मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ। ऐसे मेरी शादी को काफ़ी साल बीत गए और जब मेरे बेबी नहीं हो पा रहा था और हमारे किसी रिलेटिव ने बोला कि आप एक बार आईवीएफ करवा के देखो। और जब मैंने वो बात सुनी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मतलब मुझे किसी रिलेटिव ने बोला कि आप एक बार आईवीएफ करवाओ, और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात बोली कि बच्चा अपना ही लेना है, आईवीएफ बिल्कुल नहीं करवाना। जब मैं अपने मायके परिवार में जाती थी और मेरे साथ जितनों की शादी हुई थी उन सब के बच्चे थे, बट मेरा बच्चा नहीं था। और मैं जब उन्हें देखती थी और मेरे मन में बहुत ज़्यादा निराशा होती थी कि मेरे पास क्यों नहीं है बेबी, मैं उस चीज़ को देख के बहुत रोती थी और अपने अंदर बहुत ज़्यादा मतलब टूट गई थी, क्योंकि उनके पास बेबीज़ थे, मेरे पास नहीं था। और मैं देखती थी कि पता नहीं मेरे पास कब होगा। जब मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया और मेरी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो थे उन्होंने मेरी स्लिप के ऊपर इनफर्टिलिटी लिखा, तो उस टाइम मतलब मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी कि मतलब मेरी स्लिप पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मतलब मैं सच में बांझ हूँ और कभी सच में मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। ये चीज़ मुझे अंदर से इतना मतलब तोड़ के रख दिया और मैं घर आकर इतना रोई, मतलब मैंने डोर बंद करके अपना इतना दुख मैं किसी को बता नहीं सकती थी कि उन्होंने जब मेरी स्लिप पर ऐसा लिखा। और एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और मैंने उनको बोला कि अगर मेरे बच्चा नहीं होगा तो आप क्या करोगे। और उन्होंने बोला कि मैंने बच्चे आपसे ही लेने हैं, किसी और से नहीं। और यहाँ तक कि मैंने उनको ये भी बोल दिया कि आप दूसरी मैरिज कर लो, लेकिन उन्होंने बोला मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा कि आप मुझे बोल रहे हो कि दूसरी मैरिज करो, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और इन परिस्थितियों में मेरा और मेरे हस्बैंड का जो भरोसा और आस थी वो परमेश्वर पर पूरी तरह से दृढ़ थी। और हम पहले से ही अंकुरनुरा मिनिस्ट्री को फॉलो करते थे और हमें जब हम गवाहियाँ सुनते थे बेबी ब्लेसिंग की, और जो अंदर हमारे विश्वास था वो बिल्कुल जो था बढ़ जाता था कि परमेश्वर उनके लिए कर सकता है तो हमारे लिए भी एक दिन ज़रूर करेगा। और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और हमने एक ही बात परमेश्वर के वचनों से और खुदा के दास से सीखी कि परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो। और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने ले हैंड के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो था वो फिल किया। 26 जनवरी 2020 को मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर अपोस्टल जी ने ले हैंड किया। जब प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया और मैं नीचे गिर गई, और जब मैं उठी और मुझे एकदम से ऐसे लगा कि
मतलब मेरा शरीर जो था, जो भारीपन रहता था, वो बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। उस ले हैंड के बाद प्रभु ने मुझे डिलीवर किया और चंगा किया, और जो भी मतलब मेरी प्रॉब्लम्स थी वो सारी ठीक ही। मेरे जो पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर रहते थे वो रेगुलर हो गए, और जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे बिल्कुल बंद हो गए, और मेरी लाइफ बिल्कुल जो थी बदल चुकी थी। उस ले हैंड के कुछ महीनों के बाद नवंबर 2020 को जब मैंने अपना टेस्ट किया, और मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट जो फर्स्ट टाइम मेरी मैरिड लाइफ के 5 साल के बाद जो मेरा टेस्ट था पॉजिटिव आया। डॉक्टर्स ने मुझे जो इनफर्टिलिटी का नाम दिया था मेरी स्लिप्स के ऊपर लिखा होता था, और वो सब नाम धराई को परमेश्वर ने खत्म करके मुझे बच्चों की आनंद करने वाली एक माता बनाया। मेरे सूखे गर्भ को, मेरी बंजर गर्भ को जो था एक फलवंत गर्भ बना के मुझे ब्लेस किया। और फिर मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा, और 15 अगस्त 2021 को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जब मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों में पहली बार पकड़ा, मैंने उसको देखा, और मुझे मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इसको जन्म दिया है। मतलब वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि प्रभु ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, मेरे बांझपन के शब्द को जो मेरी जिंदगी में था उसको मतलब खत्म किया, और मुझे इतनी ब्यूटीफुल बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। और इसके बाद मुझे परमेश्वर ने 8 मई 2023 को एक बेटी के साथ और ब्लेस किया, और मैं अपने इन दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिन बहनों के पास बेबीज नहीं है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि परमेश्वर में अड़े और खड़े रहिए, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, फास्टिंग करना कभी ना छोड़ें। परमेश्वर ज़रूर एक दिन आपको फलवंत करेगा, क्योंकि परमेश्वर में की गई हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसके वचनों में लिखा है कि वो बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है। जैसे मुझे उसने सब कष्टों से, मेरे सारे बांझपन के नामधराई से बाहर निकाल के मुझे एक अच्छा जीवन दिया, मुझे बेबी गर्ल्स के साथ ब्लेस किया है। और इन बहनों को भी यही मैसेज देती हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं, परमेश्वर आपको भी ज़रूर ब्लेस करेंगे। इस आशीष के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की तारीफ करें। सब अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की आराधना में सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तारीफ करें। बस इतनी सी हसरत है मेरी, ओ तेरे बंदों में आए मेरा नाम। बस इतनी सी हसरत है मेरी, तेरे बंदों में आए मेरा नाम। ऐसा मुझको मिला है तू यीशु, ऐसा मुझको मिला है तू यीशु, जैसे मुर्दों को मिलती है सांस। बस इतनी सी हसरत। आंखों को उठा के अपनी आंखों को बंद करें। सब कलीसिया, हर एक सब ऑनलाइन ब्रांचेस, तेरे बंदों में आए मेरा नाम। उठाएं अपने हाथों को, सब कहें तुझसे ही शुरू होगा।